Good morning to all of you. In last class, we have seen about scattering of light, about atmospheric refraction, okay? And I have also talked about concave mirror and convex lens. And in the mirror, I have said to you that in the mirror reflection take place, whereas in the lens refraction take place. The meaning of reflection is bouncing back of light and the meaning of refraction is bending of light. Okay, and I have also talked you about the twinkling of the star also, that in the atmosphere there are different layer. Different layer means the temperature of the atmosphere is not unique. The temperature of the atmosphere is not unique. Somewhere the temperature is high and somewhere the temperature is low. The temperature where the temperature is high, at that place the air will be hotter, and hotter air is always means we can say lighter in comparison to colder air. And the object which is the air which is lighter is said to be rarer, and the air which is heavier is said to be denser. So whenever light moves from one medium to another medium, it bends. It bends, and due to that phenomena, it appears that stars are twinkling. But in actual, the star never twinkle. Star never twinkle. It seems that they are twinkling. So now I will take you back to your class 6th and 7th in what you have studied about light, because we have a lot of time. Our half-yearly course has already been completed. Means in PET second, 3 chapters are coming. That is force and pressure, friction and sound. And question will be from the middle of the book. And it may be from anywhere, from any topic which I have taught to you in video lecture. So if you want to score good marks, please watch all the video lecture. If you have already watched, watch it again of the chapter force and pressure, friction and sound. So see, I am talking about the light. See, when we are talking about the spherical mirror, so in the spherical mirror we are talking about concave mirror and convex mirror. Okay. See, convex mirror is also said to be converging mirror. Convex mirror को और हम लोग क्या बोलते हैं? Converging mirror. And concave mirror को हम लोग बोलते हैं converging mirror. Concave mirror, we say concave mirror as converging mirror, and we say convex mirror as diverging mirror. ओके, तो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आप लोग को लोअर क्लास में भी पढ़ाया गया है. थोड़ा सा हम उसी चीज को रिपीट करते हैं, क्योंकि लाइट चैप्टर इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर क्लास 8th also, 10th also and 12th also. So you have to be very much attentive in this chapter. So when I am saying about the concave mirror is also said to be converging mirror, what is the meaning of converging? The meaning of converging, that after reflection, if the reflected ray come closer to each other, after reflection, if the reflected ray come closer to each other, that is said to be converging mirror. And after reflection, if the reflected ray move away from each other, that is said to be diverging mirror. That is said to be diverging mirror. So when we are talking about the plane mirror, when we are talking about the mirror, we are dividing the mirror into say that spherical mirror into two parts, that is concave mirror and convex mirror, and we have already studied about which mirror? Plane mirror. तो थोड़ा सा कुछ चीजें मैं आपको ब्रीफ में लेके जाऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत है, तो प्लीज इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा. प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर है
प्लेन मिरर, व्हेन आई एम कमिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, तो मैं लिखता हूं प्लेन मिरर कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान से देखिएगा आप लोग एंड प्लीज बी अटेंटिव, ओके। एंड मेनी ऑफ यू हैव नॉट सेंड टू मी द your chapter number 11, 12, 13, 14 notes which I have taught you in this exercise, okay. So I will not repeat the same thing daily. Those who have submitted, I will give them full marks, and those who have not submitted, you will get 0 marks. So plane mirror always form virtual and erect image. प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर है जिस केस में हम लोग को जो इमेज मिलती है इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इन द कॉनकेव मिरर द here you can write also that concave mirror is also known as converging mirror, okay. And when we are talking about the convex mirror, it is said to be diverging mirror. ध्यान दीजिए, प्लेन कॉनकेव मिरर इज अ मिरर विच फॉर्म बोथ टाइप ऑफ इमेज, मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड एज वेल एज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ध्यान दीजिएगा, कॉनकेव मिरर ही एक ऐसा मिरर है जो कि हम लोग को दोनों टाइप का इमेज बनाता है। वन इज we can say that it is a concave mirror form real and inverted image also and virtual and erect image also. Convex mirror again, it form only virtual and erect image. तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास एक ही मिरर है जो कि रियल इमेज बनाता है, दैट इज कॉनकेव मिरर। प्लेन मिरर भी ये आप लोग पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम आपको रिपीट कर रहे हैं, ओके। 6th 7th में आपको पढ़ाया गया ये। प्लेन मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, कॉनकेव मिरर रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और इस प्लेन मिरर में साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर है जिसमें इमेज की साइज हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होती है। वही बात करते हैं कॉनकेव मिरर। अगर कॉनकेव मिरर में, याद रखिएगा, अब हम क्या पॉइंट बोल रहे हैं आप लोग अच्छे समझिएगा, अगर कॉनकेव मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, कैसा इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, देन ऑलवेज साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है अगर कॉनकेव मिरर, तो कैसा होगा, ऑलवेज साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इफ इट इज फॉर्मिंग रियल इमेज, तब साइज मे बी स्मॉलर, साइज मे बी बिगर, और इट इज इक्वल साइज। उसके बारे में आप लोगों को 10th में डिटेल में और पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, देन द ऑलवेज साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, तो इन द कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज size of image is less than size of object। ठीक, always size of image is less than size of object। तो ये चीज याद रखिएगा। और इसलिए आप देखते हो कि कॉनकेव मिरर का यूज कौन करते हैं, डेंटिस्ट यूज करते हैं।
इट इज ऑल्सो यूज एज सेविंग मिरर, जिसमें आपका मीन्स टीथ जो होती है उसको उसकी साइज को थोड़ा सा क्या होना है, बड़ा दिखने के लिए हम लोग कौन मिरर का यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर। जबकि आप लोग जो रियर व्यू मिरर होते हैं जो कि कार वगैरह में देखते हो, इन दैट विच मिरर वी आर यूजिंग, कॉन्वेक्स मिरर। व्हाई वी आर यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि साइज ऑफ द इमेज जो होता है वो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, तो हम लोग को एक ब्रॉड एरिया दिखता है, ज्यादा एरिया हम लोग का क्या होगा, कवर करेगा। तो ज्यादा एरिया कवर होने के लिए, ज्यादा एरिया हम लोग देखने के लिए, और क्या कहते हैं, साइज ऑफ कौन सा मिरर लगाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर लगाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं। तो ये डिफरेंस है हम लोग का जो मिरर है, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में, कि प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, और कॉन्वेक्स मिरर भी हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, और कॉनकेव मिरर भी हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। लेकिन डिफरेंस यह है कि अगर प्लेन मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज जो फॉर्म करेगा, तो इन दैट ऑलवेज द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑलवेज। बट when we are talking about the concave mirror में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज अगर बनेगा, तो ऑलवेज द साइज ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑलवेज साइज ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और वहीं अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, तो ऑलवेज साइज जो इमेज की होगी वो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है। तो अगर आपको एग्जाम में कभी बाय द वे ऐसा कंपटीशन कॉर्नर में क्वेश्चन आता है कि विदाउट टचिंग अ मिरर हाउ यू कैन फाइंड दैट वेदर अ मिरर इज प्लेन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो सपोज कीजिए बाय सीइंग इट्स इमेज, अगर तीनों में अगर जो इमेज की साइज है, अगर जो इमेज की साइज, इफ ऑल द थ्री आर प्लेस्ड एट अ पोजीशन दैट दे आर फॉर्मिंग वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, तो अगर इमेज की साइज सेम है ऑब्जेक्ट की साइज से, तो दैट इज प्लेन मिरर। अगर इमेज की साइज जो है वो बड़ी ऑब्जेक्ट की साइज से, तो दैट इज कॉनकेव मिरर। और अगर इमेज की साइज छोटी है ऑब्जेक्ट की साइज से, तो दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। तो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं विदाउट टचिंग अ मिरर दैट वेदर अ मिरर इज कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू दिस। अब मैं बात करता हूं आपसे लेंस की। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द लेंस। उससे पहले मैं आपको प्लेन मिरर का एक बार फिर से डायग्राम बता दूं। प्लेन मिरर, दिस इज द डायग्राम ऑफ प्लेन मिरर। कॉनकेव मिरर, दिस इज द डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। This is the, we can say, of the convex mirror. This is the diagram of the convex mirror. Means in the case of concave mirror, outer side is polished, but in the case of convex mirror, inner side is polished. Okay, so these are the diagram of plane mirror, concave mirror और convex mirror. अभी आपको कभी भी ऐसा मिरर आए तो आप देख के पहचान जाइएगा कि whether it is plane, straight, it is curved, spherical mirror. So polished outside, then concave, polished inside, then convex mirror. Now we are going to talk about the lens. And lens are of two types. One is concave lens, and second is convex lens, जिसके बारे में भी आपको पढ़ाया गया है, हिंट दिया गया है लोअर क्लास में। देखिए, जो भी लेंस की बात करते हैं तो वो मिरर के अपोजिट होता है। कॉनकेव मिरर वाज कन्वर्जिंग, लेकिन कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग। कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस। याद रखिएगा, चाहे कन्वर्जिंग मिरर हो, चाहे डाइवर्जिंग मिरर हो, चाहे डाइवर्जिंग लेंस हो, अगर वो डाइवर्जिंग है, जैसे कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग एंड कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग, अगर मिरर या लेंस डाइवर्जिंग है तो हमेशा जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। और डाइवर्जिंग में जो वर्चुअल इमेज बनेगा दैट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो डाइवर्जिंग लेंस है। कॉनकेव लेंस का डायग्राम बनाते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ कॉनकेव लेंस and this is the diagram of convex lens. Means edge is thick and the middle portion is thin, that is concave lens, and edge is thin and middle portion is thick, that is convex lens.
ओके, इसके बाद ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये तो पहला हो गया हम लोग का कि इसका ये हम लोग इमेज बना दिए दोस्तों। कॉनकेव लेंस फॉर्म बोथ टाइप ऑफ इमेज, मीन्स कॉनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस है, इट फॉर्म ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, याद रखिएगा। कॉनकेव जो लेंस है वो हमेशा हम लोग को क्या देता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, हम लोग की कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस गिव बोथ टाइप ऑफ इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड एज वेल एज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, मतलब कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा है जो कि दोनों टाइप का इमेज देता है, रियल एंड इन्वर्टेड भी देता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट भी देता है। मैं आपको पहले बोल रहा हूं कि आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका यूज है, क्योंकि आप लोअर क्लास में ये चीज पढ़ चुके हो, एंड वी हैव सफिशिएंट टाइम, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू ऑल दिस थिंग्स। नाउ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, कॉनकेव लेंस ऑलवेज जो होता है, जब भी ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देगा, हमेशा देगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, एंड साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हमेशा जो इमेज की साइज होगी वो हमेशा स्मॉलर किसकी होगी, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसमें अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिला, फिर मैं बोल रहा हूं जैसे मिरर में बोल रहा हूं, अगर कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिला, वो अलग कंडीशन है कि कब वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगा, कब रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगा, वो रे डायग्राम पे है, जो कि 7th क्लास में आपको कुछ डिस्कस किया गया था। तो अगर